جی عثمان ڈار کے متعلق جو ایک سال پہلے ایک پولیٹیکل ورکر سے میں نے بات کی وہ 100% ثابت ہوئی۔ عثمان ڈار کی بازیابی اور انٹرویو اور اس کے ساتھ ساتھ کئی انکشافات جو ہیں وہ کیے ہیں۔ کیا عثمان ڈار وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ وان وجدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا۔ ہاں جی، بڑی تھرلنگ ایک نیوز ہے، پہلے تھم نیل کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں جی۔ عثمان ڈار برآمد، اصل کہانی کیا ہے؟ کیا گواہی دیں گے؟ اب آگے کیا ہوگا؟ جی تو ساتھیوں کہ اس سے پہلے کہ میں یہ جو کل کا انٹرویو یعنی ہمارے دوست بھائی ہیں کامران شاہد صاحب، ان کے گھر میں جو عثمان ڈار صاحب نے انہیں ایک انٹرویو دیا اور جو ڈیٹیلز بتائیں، میں اس سے یعنی آنے سے پہلے یعنی آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور اپنا ایکسپیرینس اور اپنا وجدان بتانا چاہوں گا کہ میرا انالیسز عثمان ڈار صاحب کے متعلق یعنی آج سے تقریباً جب یہ خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، ٹھیک ہے، تو میرا یعنی انالیسز کیا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میری پریڈکشن کے مطابق کہ پی ٹی آئی از نو مور، خان صاحب کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، یہ 2019-20 کے ایرا کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب میں بات کیا کرتا تھا تو بہت سارے دوست ہیں میرے جی، ایک بہت ہی اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں ہمارے وحید گل صاحب، بڑے اچھے پڑھے لکھے سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی دلیل کے ساتھ بات کرنے والے، تو ان سے اکثر ڈسکشن ہوا کرتی تھی اور وہ یہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہی انہی کے حلقے میں اور ان کے کافی کلوز یعنی ورکر ہیں اور تھے، تو اکثر وحید گل صاحب کو میں یہ کہتا تھا کہ جی میرا پولیٹیکل ویژن یہ ہے کہ بھی جب یہ پارٹی بالکل ڈیزالو ہوگی اور ڈیلیوٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ عثمان ڈار صاحب سیاست ہی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ساتھ ہی میں وحید صاحب کو اس وقت کہہ رہا تھا کہ بڑے اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں کہ سر تسی کوئی چنگی پارٹی جوائن کر لو، آپ جیسے لوگوں کا اس یعنی ملک اور علاقے کو ضرورت ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ بڑے لوائل بھی ہوتے ہیں اور بڑا ویژن بھی رکھتے ہیں، تو آپ کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت وہ بڑی ریزسٹ کرتے تھے اور انقلاب کا معاملہ جب کرتے تھے تو جب 9 مئی اور اس کے بعد بھی میری جب ان سے اور باقی دوستوں سے، ایک ہمارا گروپ ہے جس میں نوید مراد صاحب بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، تو اس میں پھر میں ان کو یہی کہتا تھا، میں کہ جی لو جی عثمان ڈار صاحب جب چلے بھی گئے تھے کہیں یعنی ڈس اپیئر ہو گئے تھے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اب آپ دیکھیں گے کہ عثمان ڈار صاحب باقیوں سے زیادہ جو ہے نا یعنی وہ سخت بیان دیں گے اور آپ دیکھو گے کہ وہ نہیں ہوں گے، مطلب ٹھیک ہے جی۔ تو اب صورتحال اچھا اس پر وہ کافی رجسٹ کرتے تھے کہ بھئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، تو خیر مجھے حیرانگی نہیں ہے، مطلب عثمان ڈار صاحب کی جگہ پہ کوئی بھی ایسا شخص ہوتا جو باقاعدہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے یا پالیٹکس میں اس کا ایک یعنی اس طرح رجحان نہیں ہے، ایک حادثاتی طور پر یعنی پارٹی جوائن کرنی پڑ گئی ہے اس وقت، تو ڈیفینیٹلی جو ہے یعنی مشکل ہوتا ہے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونا، بشرطے کوئی نظریہ ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھٹو شہید کی پارٹی مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، تو میں اکثر ایک دن والد صاحب کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا، تو ایک جگہ پہ جانو وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، یہ جو پارک ہوتے ہیں اور وہاں وہ جو سلائیڈز ہوتی ہیں، اور وہ صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، جے بھٹو جے بھٹو۔ یہ میں نے بہت چھوٹی یعنی 4-5 سال کی 6 سال کی ایج میں نے یہ یعنی اپنی آنکھوں سے یہ سنا ہوا ہے لوگوں کو مارے کھاتے ہوئے، اور اس کے انگیسٹ جے بھٹو کا نعرہ اور ایک دوسرا نعرہ بھی وہ بڑا لگاتے تھے، ٹھیک ہے ہونا تھے میں نہیں بتا سکتا لیکن بڑی دلیری کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں خود بھی پولیٹیکل ورک کر رہا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ 12 اکتوبر 99 کو جب مشرف نے ٹیک اوور کی اور آئین توڑا، تو یعنی اس وقت بھی میں خود بھی تھوڑا سا اس معاملات سے گزرا اور میں نے باقی پارٹی قیادت کو بھی دیکھا، تو وہ جس طرح وہاں سے لے کے آج تک کھڑے رہے، تو مطلب یہ کہ وہ یعنی ایک نظریہ تھا ایک قیادت کا، تو آپ دیکھیں کہ وہ مشرف بھی نہیں توڑ سکا، بہت طرح کی جو یعنی سازشیں ہیں وہ بھی نہیں توڑ سکی، ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو نہیں توڑ سکا، تو آج بھی دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک ہیوج یعنی ووٹ بینک ہے، تو کیونکہ یہ نظریہ نہیں تھا، یہ حادثاتی طور پر
यानी इस पार्टी को जमहूरी कुव्वत मेरे शुरू से ये इस्तदलाल रहा है। और मैंने एक आपको पोस्ट यानी पिछले माह याद होगा कि एक लार्वे वाली कि लार्वे ने थोड़ी तबाही मचा के ते ये लार्वे नाल ही स्प्रे होने तो खत्म हो जाने। मैंने रेत की दीवारों की बात की थी कि रेत की दीवारों के जो जरे हैं ये उड़ जाएंगे। रेत की दीवारें कभी खड़ी और झूठ के पांव नहीं होते, मैंने उसको ये भी कहा था कि झूठ के पांव नहीं होते और रेत की दीवारें खड़ी नहीं रह सकती। तो डेफिनेटली इसमें मैं उस्मान डार साहब या बाकी जो लोग हैं मैं उनको बिल्कुल गिला नहीं करूंगा कि अगर तो ये नजरिया होता कोई पाकिस्तान की डेवलपमेंट का, पाकिस्तान को तरक्की देने का, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने का, तो यकीनन लोग इसके साथ जाने भी दे देते हैं। जालों ने जाने दी हैं जी, भुट्टो की यानी पूरी फैमिली ने जाने दी हैं। मियाँ साहबान ने जलावतनी कबूल की है, मियाँ साहबान ने जेलें काटी हैं, मरियम बीबी ने जेलें काटी हैं, ठीक है जी। और उफनी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क्यादत ने, पीपल्स पार्टी की पूरी क्यादत ने कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं, फांसियां झीली हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े रहे। तो आज भी आप देखिए कि यानी वो पार्टी यानी ग्राउंड पे मौजूद है। तो जनाब उस्मान डार साहब की अचानक बरामदगी हुई। और ये बात मैंने यानी वो जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं कल ही दोस्तों से बात कर रहा था मुराद साहब से, तो मुराद साहब इंडोज कर रहे थे मेरे उस बात की कि जी तुसी बाकी सही कैसी। तो मैंने ये नहीं, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ है और बहुत सारे दोस्त जनाब वेख ले जी की हुआ है कदे पाकिस्तान से पहले हुआ, तो मैं उससे आगे बीइंग अ पॉलिटिकल एक विजन वाले शख्स के होने के नाते बात कर रहा था। तो मैं ये उनको समझा रहा था कि भाई ये जो हो गया है ये सिर्फ पीटीआई का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। पाकिस्तान की आप ये समझ लें कि जो डिफेंसिव रू है उस पर हमला किया गया। कोई दुनिया की रियासत इस तरह का जो रवैया वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। मैंने इससे पहले व्लॉग्स में भी ये बात की है कि मेरा जमहूरियत पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है और अदारों को भी मैं यानी इज्जत देता हूं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये मसला था कि ये देखें ये पाकिस्तान की सालमियत पे एक बड़ा शदीद और रईक किस्म का यानी हमला था जो किसी तरह भी बर्दाश्त कोई मुबे वतन शख्स नहीं कर सकता, ठीक है जी। और जिस तरह यानी अदारों की तजलील की गई और जिस तरह सारा कुछ हुआ, उसके बाद रियासत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती अगर आप उसको सही तरीके से नेगोशिएट नहीं करते। अब कहा यह जाता है कि जी वो जनाब बड़े उन्होंने जुल्म किए, ठीक है जी, शायद ख्वाजा साहब ने प्रेशर डलवाया है और उसके बाद जनाब जो है तो ख्वाजा साहब तो जनाब 3.5 साल इस्तेसाल सहा है ना इमरान खान की फाशिस्ट यानी गवर्नमेंट में जो जुल्म हुआ है। तो एक दोस्त हैं जी लिखारी भी हैं तो कह रहे हैं जी बड़ा इतना तारीखी जुल्म नहीं हो। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि भाई जिस जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, जो ज़ियाउल हक ने किया है, फिर जो मुशर्रफ ने इनके साथ किया है, फिर उसके बाद इमरान खान के दौर में जो मियाँ साहब की पूरी फैमिली, पूरी नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत जिस तरह घसीट कर उनको 2-2 2.5 साल उनकी जमानतें नहीं होने दी, बकाऊ जो जजेस थे वो भी यानी इंसाफ नहीं फराम कर रहे थे, तो उसके मतलब क्या कहना जी नहीं वो सारे चोर सन। मैं आपको इस्तदलाल कह रहा हूं कि जब ये बात याद कराई जाती है कि जैसी करनी वैसी बननी, जैसा आप एटीट्यूड रखोगे आपको उसका यानी रिएक्शन। तो वो ये था कि ये क्योंकि सारे पॉलिटिकल वर्कर थे ही नहीं, मोस्टली लोग इब्नुल वक्त थे, ठीक है ना जी, कि एक इब्नुल वक्त थे। जहां तक उस्मान डार साहब का है, इनके भाई हैं उमर डार साहब, उनसे मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशन रही है। मैंने आई इन सियालकोट, तो उनसे मुलाकात रहती थी अक्सर ताज होटल में, वो तो चीफ लाते थे। तो उमर भाई बड़े हम्बल और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। तो उन्होंने याद है 2002 का इलेक्शन लड़ा था परवेज इलाही साहब की जो पार्टी है काफ लीग, वहाँ से, तो उसमें वो थोड़े बहुत वोट यानी ले चुके थे। तो उसके बाद फिर इनकी स्पेस नहीं बनी नून लीग में, तो इन्होंने फिर पीटीआई ज्वाइन की और उमर डार ने बड़ा खूब मुकाबला किया ख्वाजा आसिफ साहब का और वोट भी अच्छे खासे लिए, लेकिन क्योंकि एक पोलिटिकली माइंड नहीं था, ठीक है जी, एक ग्रास रूट लेवल पे यानी कुछ भी नहीं था, वो बस खान साहब आ रहा जी जिस तरह सारी पार्टी चली गई है ना, तो ये होना था। और ये जब मैं अपने दोस्तों के साथ ये बात करता था तो उस पर बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता कि भाई डेफिनेटली कि जब आपकी जड़ें नहीं है, अवाम में जड़ें नहीं है, अच्छा आपको कोई मैनिफेस्टो नहीं है क्या। देखें ना, अभी कल मैंने डार साहब का इंटरव्यू सुना है, थोड़ा से उसके क्लिप्स देखे हैं मैंने, उसमें वो सारा मुद्दा खान साहब पर डाल रहे हैं और चंद लोगों के ऊपर डाल रहे हैं।
मैं ये कहता हूँ कि अब इस बात को भी 4-5 माह हो गए हैं, तो हुबुल वतनी का तकाजा ये होता है, देखें कि जब ये मामला होने जा रहा है तो आप फौरन बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अवाम को दमाद मिलें और आप यानी उस वक्त बताएं। ठीक है जी, क्या अब आप ये उस वक्त बता रहे हैं कि जब आप भी बहुत सारे केसेस का सामना कर रहे हैं और इस मामले में आपका नाम भी आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं ये कहूँ कि यही फर्क होता है एक पॉलिटिकल वर्कर में, ठीक है जी, और एक जो यानी हसाती तौर पर यानी जो हम लोग सियासत में आ जाते हैं, ये डिफरेंस होता है। ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई, पूरी नून लीग की जो क्यादत है, ठीक है जी, राणा सनाउल्लाह साहब जिन पर इमरान खान ने झूठा केस वो डाला था 23 या 22 किलो जो है यानी हेरोइन का। तो आप ये चीज़ देखें कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, जिसकी बेस होती है, ट्रेनिंग होती है, वो किसी भी हाल च नहीं होता। मैं पीटीआई के उन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ जेडे कहते हैं जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी केड़ा जुल्म हो रहा है कि उन्होंने जुल्म नहीं होया जब उनको काल कोठड़ियों पे इनकी तो जमानतें छठे सातवें दिन इनको जमानतें मिलती रही हैं, वहां तो 2-2 साल जमानत। भाई बात यह है कि क्योंकि पार्टी एक जैली थी, जो मैंने 2016-17 में लिखा था कि ये जो मखलूकें काम कर रही हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को बदनाम करके और एक आर्टिफिशियल पार्टी ला रहे हैं, तो ये इनकी गले की हड्डी बनेगा। तो वो देखें गले की हड्डी तो ये मामला बना हुआ है रियासत के। तो मैंने ये कहा था कि ये तजर्बा नहीं चलना, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो पाकिस्तान संभालना, ये मैं उस वक्त भी बात कर रहा था। तो कहने का मकसद है कि मेरे लिए तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं, उस्मान डार साहब को यही करना चाहिए था। ठीक है ना कि इसके अलावा उन्होंने को की राह सी दसो मैनू, करप्शन के केसेस उनके ऊपर बड़े ह्यूज किस्म के करप्शन के केसेस हैं। ठीक है जी, उसके अलावा यानी 9 मई के जो मामला हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उनका जुलूस शुरू से उन्होंने कटे हुए सन सर। ठीक है जी, और अब वो खुद ये मान रहे हैं कि उन्हें पार्टियां जो बैठे सन, तो ये भी एक चीज़ होती है ना कि भाई आपके नोटिस में एक चीज़ आ रहा है कि इस किस्म का फाशिस्ट रवैया बनाया जा रहा है, रियासत के खिलाफ इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, दारों के खिलाफ की जा रही है। तो डेफिनेटली जब तक आप खामोश रहते हैं तो आप उस सारी एक्टिविटी का हिस्सा रहते हैं। अच्छा, अब चलो जी, ये तो एक मामला हो गया। अब यानी असल कहानी यही है कि जनाब वो हुण प्रेशर जड़ा है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। ठीक है जी, क्योंकि कोई नज़रिया नहीं था, कोई पीछे यानी नज़रियाती मामलात नहीं थे, बस एक शौक ही कह लो। मैं तेन वही कहूँगा कि चलो जी शौक हो रहे मैं मैंने बन ही जावा। ठीक है जी, और मैं ये समझता हूँ कि उस्मान डार साहब ने इस मौके के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त यानी फैसला किया है। ठीक है, कारोबारी लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं और मुल्क की तरक्की में भी और इलाके की तरक्की में इनका, इस फैमिली का, डार साहब का, इम्ताजुद्दीन डार साहब बड़े यानी मोअज़्ज़ज़ पर्सनैलिटी हैं। मुझे याद है मैं काफ़ी क्वाइट यंग होता था और ये निशात पार्क में जो इनका एक नून लीग का ऑफिस था, उससे सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीरें लगी होंगी सन। तो मैंने तो डार साहब उस वक्त मुझसे तो छोटे हैं, तो मुझे बड़ी सी तरह याद पड़ता है कि उन ऑफिस में मैं भी आता था, तो मैं फिर वो सारी एक्टिविटी देख रहा होता था कि इम्ताजुद्दीन डार साहब कितना एहतराम दे रहे होते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को। वो सारी चीज़ें मुझे ज़रा नहीं मुकम्मल तौर पर यानी मुझे लगता है कल की कहानी है। तो फिर वक्त के साथ साथ फिर आपको पता है कि इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ यदि चेंज होती है, फिर जो मसनूई चीज़ें होती हैं एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने यानी ख़त्म होना ही होता है। तो अब जहाँ तक सवाल ये है जी कि क्या ये वादा माफ गवाह बनेंगे, तो जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है इंटरव्यू सुन के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है नहीं बढ़ेंगे। डेफिनेटली वो अपनी जान बचाने के लिए वो किसी हद तक भी जाएंगे। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि जिस तरह ये डार साहब अक्सर कमरान शाह साहब के ही प्रोग्राम में ज़्यादातर आते थे, तो मेरे पाकिस्तानियों मेरा कप्तान यानी पूरे तकरीबन अगर वो 35 मिनट का प्रोग्राम होता था तो डार साहब जो है मतलब कम अज़ कम यानी 40 मरतबा मेरे पाकिस्तानी तो 40 दफ़े ही कप्तान साहब के नज़रिए की गल करते सन, साथ खड़े रहने की बात करते थे, खुशहाली की बात करते थे और खान साहब को मसीहा बनाने की यानी बात करते थे मतलब। तो अब वो कहते हैं ना कुछ मरावत, कोई रवादारी यार कोई चीज़ होती है। हमने तो ये चीज़ सीखी है ईमानदारी से ज़िंदगी में शायद कि ठीक है
आपकी एसोसिएशन भी होती है, सारा कुछ भी होता है, आप तनकीद भी करते हो, लेकिन आप यार एक नज़रिए के साथ खड़े हो तो फिर आप एक वादा माफ गवाह किस तरह बन सकते हो? ये चीज़ यानी मतलब सोचने वाली है। यानी मैं भी कहना कई यूट्यूबर्स हैं जो या जो वीलॉग्स वगैरह भी करते हैं, साफ़ी हैं, उन्होंने काम जनाब चुके रखे है ऐसे इंटरव्यू के बाद। मेरा सोचने का क्राइटेरिया ये है, मुझे देखें पाकिस्तान की मट्टी के एक ज़रे से मोहब्बत है, एक शख्स से मोहब्बत है, तमाम अदारों से मोहब्बत है, अपनी पोलिटिकल जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन और जो पोलिटिकल हमारी फोर्स है और जो क़यादत है, सबसे ज़्यादा मेरी अटैचमेंट हर इमरान खान साहब समेत। तो मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे जैसा कमज़ोर आदमी भी कि जिसकी कोई बुनियाद कोई नहीं कि उन्होंने को फड़ के लाया जाए तो ज़मानत भी बड़ी मुश्किल ना होगी। बट अपार्ट फ्राम डैट यकीन कीजिए कि खुद अल्लाह की ज़ात पे इतना यकीन है या एक अपना करैक्टर ज़रूर ये रखा हुआ है कि यार हक सच के साथ खड़े हों, और अगर आप मुलव्वस हैं तो आप वो जिम्मेदारी कबूल करें तो कम से कम रवादारी होती है। फिर आप ये देखेंगे आप कैसे खान साहब के खिलाफ, या फिर आप गलत है, फिर आपको बाकायदा तौर पर कौम से एक माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई आप गलत थे, जो आप थे, आप गलत साइड पे खड़े हुए थे, वो कोई नज़रिया नहीं था, वो पाकिस्तान एक तबाही प्रोग्राम था। फिर आपको ये गोल मोल और इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए, आपको कौम को ये बताना चाहिए बाकायदा, यानी कौम से यानी माफ़ी मांगनी चाहिए कि यार मैं गलत शख्स के साथ खड़ा था, मैं गलत पार्टी के साथ खड़ा था, ठीक है जी, मैं गलत सोच के साथ खड़ा हुआ था जिसने मुल्क को तबाह किया या यानी नुकसान पहुँचाया। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3-3.5 साल या 10 साल पिछले आप मेरे कप्तान और मेरे पाकिस्तानियों मेरा कप्तान है कहता है, यानी ये आप यानी कह रहे हो, और फिर उसके बाद जो कल मैंने इंटरव्यू सुना तो आप यकीन कीजिए कि एक्सपेक्टेड तो था, मुझे पता है कि ये प्यार तो होना ही था, या तो होना ही है, ठीक है जी, लेकिन सर धचका ये था कि जब उन्होंने कहा कि जी मुझे तो बुलाया जाएगा तो मैं बिल्कुल जाऊँगा, ठीक है जी, चलो जाना चाहिए है, लेकिन फिर ये कि वहाँ क्या ये थोड़ी सी जाके ये करेंगे वहाँ पे इस्तदा कि जी मैं भी इस सारे चक्कर च मुलवस हैं भी, अगर आप मुलवस नहीं थे तो फिर आपका काम था कि आप बाहर आके तो ये बात करते। तो मैं ये कहता हूँ कि यार कोई मरबत होती है, कोई रवादारी होती है, अच्छा कोई आपका ताल्लुक होता है डेफिनेटली, ठीक है जी, और फिर पता नहीं यार लोग किस तरह सामना कर लेते हैं, ठीक है। साढ़े को तो जनाब जो मामला है वो यानी नहीं होता, नहीं सामना होता, ना ही यानी हम यानी इस चीज़ पे मतलब सामना कर सकते हैं। तो ये है कि यकीन करें कि मुझे अब कई जो यार यानी दोस्त हैं, लोग हैं, यानी वो ये बात कर रहे हैं कि जी हुण उस्मान डार यानी की करेगा, तो मतलब वो यानी वो वही करेगा कि देखो ना, वो एक साड़ा मकूला है ना कि जो जान बचाना है वो तो फ़र्ज़ है, यानी हर सूरत फ़र्ज़ है, तो डेफिनेटली जी जान बचाना उन्होंने तो भी फ़र्ज़ है, उन्होंने जान बचानी है। लेकिन अब ये देखना ये है कि जब वो कहीं JIT या कहीं यानी अदालत वगैरह में मतलब पेश होते हैं, ठीक है जी, तो उसके बाद वो यानी क्या करते हैं, ठीक है जी, उनका जो है वो मतलब क्या यानी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है जी, वो गवाही देते हैं तो वो यानी मुकम्मल तौर पर यानी जो जिम्मेदारी है यानी वो किस पर डालते हैं। तो अब ये चीज़ जनाब यानी देखनी होगी कि आगे चलकर मामला जो हैं वो किस तरह यानी चलते हैं उस्मान डार साहब। और अच्छा सुनने में ये भी आ रहा है कि यानी कोई और भी है कि जिसने ये जो है वो कोई और चेहरा भी ऐसा सामने आ सकता है, बहुत ही करीबी चेहरा जो कि यानी गवाही दे सकता है। तो वो एक सवालिया निशान है, मुझे पता है कौन हो सकता है, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा जी अगले व्लॉग में। अल्लाह ताला पाकिस्तान पूरी दुनिया पर बचे बचे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, तमाम कौमी क़यादत, अदारों की सबको बादशाह रखे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक और थ्रिलिंग न्यूज़ के साथ।